Hallelujah. Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। It is nice to see you again through this Zoom meeting. और आप सबको वापस से देखकर खुशी होती है। And it is my desire and my prayer the Lord should do great things in our midst. और ये मेरी ख्वाहिश है, खुदा की भी यही ख्वाहिश है कि हमारे बीच में खुदावन बड़े कामों को करे। I strongly believe the word of God is powerful. It has the ability to change our life and situation. और मेरा पूरा यकीन है खुदा के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं, हमारे परिस्थितियों को बदल सकते So हैं। as you prepare your heart, the Lord is going to release His word, the word of healing, the word of miracle, the word of breakthrough in your life. और जिस तरह से अपने दिलों को आप तैयार करते, खुदावन ऐसे कलाम को भेजेगा जो आपकी जिंदगी में चंगाई को लेकर आएगा और ब्रेक थ्रू को लेकर आएगा। According to me, there is no one greater than the word of God. और मेरे अनुसार कोई भी इस जगत में कोई भी बड़ा नहीं है, इस कलाम से बढ़कर कोई नहीं है। Even God Himself is submitted to His word. क्योंकि खुदावन खुद अपने आप को इस कलाम में उसने डाल दिया है। He respects His word. और वो अपने ही कलाम की इज्जत करता है। He is ready to fulfill His word. और वो ही अपने कलाम को पूरा करने की पूरी हिम्मत रखता है। So He has given His word to us so we can survive or overcome every situations. और उसने आज हमें कलाम देता है ताकि हम सारे परिस्थिति के ऊपर विजय पा सके। So when you hold the word can remove you out of mess and make your life a message to others. और अगर आप कलाम को लेंगे तो ये आप जिस परिस्थिति में उसमें से निकाल के आपको गवाहियों के साथ वो टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। So how to hold the word? और किस तरह से हम वचन को कलाम को थामे रख सकते The हैं। God is so gracious every day. He is sending blessed men of God and He is releasing the word of God. और हम देखते हैं कि खुदावन हमारे पर इतना दया करता है कि रोज वो हमें रोज अपने खादिमों को भेजकर वो अपने कलाम के जरिए हमें उत्साहित करता है। So as I requested and advised last week, hallelujah, to practice something. और जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ कहा था। I hope you are practicing that. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये अपनी जिंदगी में कर रहे हो। Hallelujah. I told you as soon messages get over, hallelujah, thank the Lord, and whatever the best that you received through that message, keep on thanking God. और मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जब आप कलाम पढ़ते हो तो जो परमेश्वर आपसे बात करता है वो कलाम को लिखिए और उसे याद कीजिए। And I told you if you minimum start to remember 3 points or 3 words, it will be for a week more than 21 words or 21 scriptures. अगर रोज भी आप एक 3 वचन को या 3 शब्द को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो और उसे सीखते हो तो पूरे हफ्ते में आप 21 वर्ड्स सीख सकते हो। So last week we studied from 1 Corinthians chapter 15 verse number 57 and we studied from 2 Corinthians chapter 2 verse number 14. और हमने पिछले हफ्ते सीखा था 1 कोरिन्थियों 15:57 में and 2 Corinthians 2:14. और दूसरे कोरिन्थियों 2:14 में It is written, in the fellowship of Jesus Christ, God gives us the victory. जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तभी परमेश्वर हमें विजय देता है। That means our victory is in Christ Jesus. इसका मतलब है कि जब हमारा जो विजय है वो यीशु मसीह में है। So as soon we start to fellowship with Him, the victory will manifest in our life. और जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो निश्चय है कि हमारे जिंदगी में एक विजय का अनुभव होगा। Same way, whatever we need, Jesus able to provide our needs. और उसी तरह से जो भी हमारी जरूरत है उस जरूरतों को भी पूरा करने के लिए अब हमारा यीशु मसीह तैयार है। For example, if I need health, the fellowship with Christ can bring health and wealth to my life. और जैसे हमें कोई बीमारी से छुटकारा चाहिए, जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। So we studied from John chapter 16 verse number 33 where Jesus said, in me you will have peace. और जिस तरह से यूहन्ना 16 में यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में आपको शांति मिलेगी। But in the world you will have a tribulation, you will have a confusion,
you will have problems. और यीशु मसीह कहता है कि जगत में तो बहुत क्लेश है पर मेरे पास शांति है। So again we went to 2 Corinthians chapter 2 verse number 14. But thank to be God who always leads us in the triumphant in Christ Jesus. 2 Corinthians 2:14. और 2 कोरिन्थियों 2:14 में लिखता है हमें विजय के उत्सव में लेकर चलता है। So we studied the word triumphantly, that means with great success. और विजय के उत्सव में लेकर चलना है मतलब बहुत बड़ी हम विजय को देख सकते हैं। Victory after victories. और सिर्फ एक विजय नहीं, विजय के ऊपर और विजय देख सकते हैं। So we studied this scripture. और जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते कलाम को सीखा था, So today we will continue to see that victory in my life. और हम अभी आज सीखेंगे कि किस तरह से हम विजय को हमारे जिंदगी में देख सकते हैं। So we should believe that greater is He who is in me than who is in the world. और पहला है कि ये हमने विश्वास करना चाहिए कि जो मेरे अंदर निवास करता है वो दुनिया में निवास करने से बढ़कर है। You have to speak every time you are saying, Lord, I thank you. The greater is He who is in me than He who is in the world. और रोज आपको इसको कबूल करते रहना है कि मेरे अंदर जो निवास करता है वो दुनिया में निवास करने से बढ़कर है। He has given me peace. और उसने मुझे शांति दी है। He has given me the victory. और उसने मुझे जय और विजय दी है। He has prepared the table for me. और उसने मेरे दुश्मनों के सामने उसने मेज बिछा के He रखा has है। a great plan for my life. और उसकी योजना मेरे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी है। He has commanded His mighty angels to charge over me. और उसने अपने दूतों को मेरे लिए रक्षा के लिए भेजा है। You have to thank God. You have to rejoice in God. और इसी तरह से ये सारी बातें जो यीशु मसीह हमारे बारे में कहता है वो उस बातों में हमें आनंद और विजय पाना है। The believer who rejoices in God, he will have progress in his life. और जो शख्स यीशु मसीह के कलाम के ऊपर उसके बोले हुए शब्दों के ऊपर विश्वास करता है वो हमेशा आनंद और खुशी में रहता है। The one who rejoices in the Lord, और जो कोई प्रभु यीशु में आनंद रहता है he becomes stronger. He receives the spiritual strength to walk in Christ. और जैसे वो प्रभु यीशु में आनंद बनाता है उसके अंदर और बल और ताकत आता है ताकि वो बातों को फेस कर सके। So one more word we saw from 2 Timothy chapter 1 verse number 7. It is written, God has not given us the spirit of fear. और जैसे हम एक First 2 Timothy 1:7. और 2 तीमुथियो 1:7 में लिखता है कि खुदा ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है But He has given us the spirit of power. पर उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। He has given us the spirit of boldness. और उसने सामर्थ की और हिम्मत की आत्मा He has दी given है। us the spirit of love and sound mind. और उसने प्रेम का और हमें साउंड माइंड की आत्मा दी है। Hallelujah. So Bible says it is given. और प्रभु यीशु कहता है और वचन कहता है कि उसने दे दिया है। So what is my response? My response should believe, Lord, I thank you. You are given me the spirit of boldness. You are given me the spirit of courage. You are given me the spirit of power. You are given me the spirit of forgiveness. और हमने क्या करना चाहिए? हमने उस पर विश्वास करना चाहिए जो बातें उसने मुझे दे दी है और उसके लिए मैं शुक्र करना चाहिए कि प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे संयम की आत्मा दी है, तूने मुझे धीरज की आत्मा दी है और डर की आत्मा नहीं दी है। We should start our prayers with the points which already given to us. और जब हम दुआ में बैठते हैं तो हमने इस बात के लिए शुक्र करना चाहिए कि जो बातें यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी दी है। Just we saw, hallelujah, the greater is He who is in me. Lord, I thank you. The Christ is in me. और जिस तरह से जैसे हमने कलाम सीखा कि जो मेरे अंदर निवास करता है जो दुनिया में है उससे बढ़कर है। We saw in 1 Corinthians 15:57, but I thank to God who gives me the victory through Christ Jesus. और जैसे हमने कलाम में पढ़ा कि यीशु मसीह के जरिए हमें जो विजय देता है हमेशा। And 2 Corinthians 2:14 we saw, I thank to God who always leads me in triumphant, in victory over victories. और हम 2 कोरिन्थियर 2:14 में पढ़ते कि हमें विजय की उत्सव में लेकर चलता है। So and again we saw John 16:33, Jesus said, in me you will have peace. और जैसे यूहन्ना 16:33 में कहता है कि मुझ में आपको शांति मिलेगी। So when you have these words in your heart, जब ये कलाम की बातें आपके दिलो दिमाग में बसी रहती you है are able to see them in your spiritual mind. और आप अपने आत्मिक आंखों को उस बातों को देख सकते
सकते हो। And when you start to praise God for those truth, those promises, those reality, और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो कि ये सारी बातें आपने मेरे बारे में लिखी और मेरी जिंदगी में कर रहे हैं, you will progress your spiritual life. तभी आप आत्मिक उन्नति पाते रहोगे। You will able to break the Jericho walls and move to the promised land. और तभी वो जो यरीको की दीवार आपकी जिंदगी से गिर जाएगी और वो जो वादा किए हुए जगह पर आप पहुंच पाओगे। So as a born again believer, और जैसे आप नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं, as we studied, we are born again through the word of God. जैसे हमारा नया जन्म हुआ है परमेश्वर के कलाम के जरिए। So when you take the word, you spiritually grow and you become strong every day and you are able to overcome the carnal nature, demonic nature. और जैसे आप कलाम का सहारा ले तो कलाम के ऊपर निर्भर हो जाते हो तो आपके अंदर से जो स्वभाव परमेश्वर का नहीं है वो अपने आप निकल जाता है। Amen. As you receive the word is fire. As you receive the word is sword. As you rejoice in the word will transform your life. और जिस तरह से आप कलाम को लेते हो, कलाम जिंदा है, कलाम तलवार के समान है, वो वचन आपकी जिंदगी में काम करने के लिए और आपको बदलावट लेकर आएगा। So if you want to experience God's power in your life, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपकी जिंदगी में दिखे, you have to overcome self-pity. तो आपने पहली बात है अपने खुद के ऊपर दया दिखाना, सेल्फ पिटी। यू शुड नॉट हैव ए सेल्फ पिटी। ओ मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूं, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होएगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होएगा, ऐसा नेगेटिव बात आपने छोड़ना पड़ेगा, तभी खुदा का काम आपके जीवन में होएगा। तो जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं कुछ भी काम का नहीं हूं और अपने आप को ही दोष लगाते हैं और निकम्मा सोचते हैं। तो ये बातों को पहले छोड़ना है अगर परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में होना है। The spiritual progress depends upon not only prayer, it depends upon what comes out of your mouth. और अगर हम आत्मिक उन्नति देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ हमारे प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं होता है, पर हमारे जबान से क्या बातें निकलती है उसके ऊपर निर्भर है। Praise God for everyday prayer. Praise God for personal prayer. It is very important once you prayed what you are going to utter. और एक बार ये बहुत अच्छी है कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, दुआ में बैठते हैं, पर प्रार्थना करने के बाद हमारे जुबान से क्या बातें निकलती है। If word of God is not coming out, if life is not coming out, you are destroying your own life. अगर आपके मुंह से जिंदगी देने वाली बात नहीं निकलती है तो आप अपने ही जिंदगी को खराब करते हो। Once you prayed for your children, once you prayed for your husband, according to the will of God, you have to bless them. You have to hold on what God has spoken about them. और एक बार जब आप अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, उसके बाद में आपने वो प्रार्थना में जिस बातों के लिए आपने किया उसको थामे रखना है और अपने जुबान को गलत नहीं इस्तेमाल नहीं करना है। So we are going to study today from Numbers chapter 21. और हम गिनती की किताब में जाएंगे, Verse number 5, verse number 6, verse number 8 and 9. हम गिनती की किताब 21 में, Verse number 5 says, और उसमें गिनती की किताब 21:5 में जाएंगे। and the people spoke against God and against Moses, and they said, why have you brought us up out of Egypt and no water, and our soul desires for bread. और हम 21:5 में पढ़ते, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मारने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। Everyone say, the people spoke. हम कहेंगे कि लोग कह रहे थे। Hallelujah. They used few words. और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। But according to this scripture, they used the negative words, murmuring words. और हम देखते हैं इस कलाम के अनुसार उन्होंने नकारात्मक शब्द बात किया और कुड़कुड़ाए परमेश्वर के सामने। And they spoke against God. They spoke against the man of God. और उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात की और परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध बात किया। And verse number 6.
the great response took place. और हम देखते हैं कि 6 अध्याय में उसका उनको भाग देखने मिला, Because they spoke, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुड़कुड़ाए। the Lord sent fiery serpents among the people, and the serpent bite the people, and many people died. और हम देखते हैं कि 6 में लिखता है, यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इसलिए मर गए। So what you speak will affect your life. और जो इसीलिए हमने जांचना चाहिए कि जो बातें हम करते हैं उससे हमारे पर नतीजा निकलता है। Many times we are in the problem because of our careless words. और बहुत बार हम खुद अपने प्रॉब्लम्स में गिरते हैं क्योंकि हमारे जबान में हम जो कुछ है वो बोल देते हैं। Many times in the division in the church or division in the family, it's because of careless words. और हम देखते हैं हमारे घरों के भाग हो जाते हैं, कलीसिया के भाग हो जाते हैं क्योंकि हमने अनजाने में जो चाहे वो बोल दिया। Because people don't have fear of God, they will speak anything, and that word became a snare for them. और हम देखते हैं क्योंकि लोग खुदा का डर और खौफ उनमें नहीं है, इसीलिए वो जो चाहे बोल देते हैं और उसका फल वो खाते हैं। So it is very sad thing, the God who brought them out of Egypt with the great miracles, now instead of thanking God, they start to murmur against God, speak against God, speak against the man of God. और हम देखते हैं जो खुदावन ने उनको मिस्र से बाहर निकाला था, वो खुदावन का शुक्र करने के बजाय वो खुदावन के और खुद सेवक के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। There is a action for every word, reaction for every action. और वो जो भी बोल रहे हैं उसका नतीजा भी निकल रहा है। And the very saddest thing, because they spoke against God, against the man of God, Bible says the Lord sent the fiery serpents. और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के सेवक के खिलाफ कुड़कुड़ाए, इसीलिए परमेश्वर ने वो तेज विष वाले सांपों को भेजकर उनको काटा। And those serpents bite them, and many are died. और वो सांप काटने से बहुत लोग मर भी गए। That is not a good news. और इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। But it is just a reference to be careful about your words. और मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि कितना जरूरी है कि हम अपने जबान को संभालें। So let us go to New Testament, Matthew chapter 4, verse number 11. और हम मत्ती की किताब 4 में 11, it is written, then the devil left him, and behold, angels came and ministered him. हम 4:11 में पढ़ेंगे कि तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। Hallelujah. You may say Jesus Christ is the Son of God, therefore angels came. आप कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, इसीलिए स्वर्गदूत आए। So स्वर्गदूत पहले किधर थे? अभी आए, पहले किधर थे? हालेलुया, पहले वो स्वर्ग में थे। But when Jesus, hallelujah, using the word of God against the devil, hallelujah, the word defeated the devil and the word released the angels into his life. और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी थे यहाँ पर जब यीशु मसीह शैतान के खिलाफ बात करता है और उसको डांटता है, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वर्गदूत वहां प्रकट होते हैं। You know the story that Jesus was tempted by the wicked devil. हम यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह शैतान के जरिए आजमाइश आई थी उसको। The devil was quoting the scripture, so Jesus should fall into his temptation. और शैतान परमेश्वर के कलाम को ही इस्तेमाल करके यीशु की परीक्षा ले रहा है। But Jesus defeated the devil. He said, "It is written, it is written, it is written." और हम देखते यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया इसी तरह से परमेश्वर के कलाम का सहारा लेकर। Once he was quoting the right word, I believe the word which is the Holy Spirit is giving to him in that time. और हम देखते जो कलाम को यीशु मसीह अपने जबान से बोल रहे थे उस समय पर, वो पाखरू ने दिया हुआ कलाम है, क्योंकि वो पाखरू से बढ़कर ये फास्टिंग प्रेयर में वो गया था। So when he used the word of God, और जब उसने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया, the verse number 11 says the devil left him.
और हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन इस्तेमाल किया इसलिए शैतान उसको छोड़कर चला So गया। if you preserve the word in your heart, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने दिलो दिमाग में बसा कर रखोगे the Holy Spirit will release that word through your tongue. और पवित्र आत्मा के जरिए वो कलाम आपके जबान से जब निकलेगी And the devil will live forever. और तब शैतान वो हमेशा के लिए छोड़कर चला But जाएगा। that is not only the good news. पर यही सिर्फ खाली अच्छी खबर नहीं The है। good news, the angels will come and minister you. हम देखते हैं कि शैतान चला जाएगा और फिर स्वर्ग दूत आकर आपकी सेवा में लगेंगे। Once again, I read the scripture, Matthew chapter 4, verse number 11. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered him. और हम पढ़ते हैं तब शैतान उनके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उनकी सेवा करने लगे। In the Old Testament, we saw in Numbers 26, verse number 6, when they spoke negative words, murmuring words, they spoke against God. The serpents came. और हम देखते हैं कि पुराने करार में जब परमेश्वर के विरुद्ध खिलाफ बात करने लगे, परमेश्वर के जनों के विरुद्ध खिलाफ बात करने लगे, तभी सांप ने आकर उनको डस लिया। This is not the serpent killed them, it is their words killed them. और वो जाके सांप ने उनको नहीं काटा, पर जो बातें उन्हें अपने मुंह से निकाली थी वो बातें ने उनको काट दिया। If they were not uttered the negative words, if they not murmured, the serpent never would have come there. अगर वो अपने जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कभी भी वो सांप उधर नहीं पहुंचते। But in the New Testament we saw when Jesus used God's word, और हम देखते हैं कि नए करार में जब यीशु मसीह परमेश्वर के कलाम को बोलते हैं the angels manifested there. और हम देखते हैं वहां स्वर्ग दूत प्रकट होते हैं। So it is very important not to only hear the message every day. तो ये खाली जरूरी नहीं है कि रोज हम कलाम को सुनते हैं। अच्छी बात है, आप सुन रहा है, अरे उससे भी ज्यादा इसको अपने दिल में रखो, और जब आप अकेला में रहते हो, start to thank God what God has spoken about you. और जब आप अकेले में रहते हो तो परमेश्वर ने जिस कलाम से आपसे बात किया उस कलाम को याद करो और धन्यवाद देते रहो। In Hebrew chapter 8 verse number 10, God says, और हिब्रू की किताब में 8 और 10 में इस तरह से कहता है, For this is the covenant that I will make with the house of Israel. और फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों के साथ बांधूंगा। After those days declares the Lord, I will put my law into their mind and write them on their hearts. और वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। So this verse, by this scripture, you will know what is the plan of God for your life. और इस कलाम के जरिए आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा और वो क्या चाहता है हमारे लिए। The God want to make a new covenant with you. और परमेश्वर चाहता है कि वो एक नई वाचा हमारे साथ बांधे। In the covenant there is two party A and party B. और हम देखते हैं जब वाचा बांधते हैं, जब कोई वादा करते हैं उसमें दो पार्टी रहती है। And the party A, the God says, I am willing to make a covenant with you, my children. और यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि मेरे बच्चों के साथ मैं ये वादा करना चाहता हूँ। I want to put my law, my word in your mind. और मैं चाहता हूँ कि मेरे वाचा को आपके दिमाग में डालूं। I want to write them in your heart. और मैं आपके हृदय में उसको लिखना चाहता हूँ। Are you willing? क्या आप उसकी इच्छा करते हो? If you say yes, Lord, write your word in my heart, put your word in my mind. और अगर आप कहोगे हाँ प्रभु मेरे हृदय पे तेरे वचन को लिख दे और मेरे मनों में तेरे वचन को डाल दे। If you desire the will of God in your life, अगर ये इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा आप अपनी इच्छा बना लोगे, and this is the will of God, और ये परमेश्वर की स्वयं इच्छा है, and no one can stop this, और उसे कोई रोक नहीं सकता, and God can help you, or God can put his words in your mind and he can write his words in your heart. तो वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा ताकि उसके वचन को वो आपके मनों में डाले और आपके हृदय पे वो लिखे। So when you have the word in your heart, और जब परमेश्वर का कलाम आपके दिल में रहेगा, when you see that word, और उस कलाम को आप अपने आत्मिक आंखों से जब देखोगे, that word will remove the poison from your heart. और वही कलाम है जो आपके अंदर से जो विषनाशक जो भी बातें हैं वो निकाल देगा। When you see
that word, Lord, I am a new creation in Christ Jesus. और उस कलाम को देखोगे और कहेगे कि मैं प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। I am the glory of God in Christ Jesus. और खुदा के जलाल से मैं भरा हुआ हूँ। I am the light of this world in Christ Jesus. और मैं इस जगत की ज्योति हूँ यीशु मसीह के द्वारा। I am a life-giving spirit in Christ Jesus. और मैं जिंदगी देने वाली आत्मा हूँ। I am the Son of God in Christ Jesus. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ यीशु मसीह के द्वारा। When you see those scriptures in your spiritual eyes, और जब ये सारे कलाम को अपने आत्मिक आंखों में आप देखना शुरू करोगे, these scriptures will cleanse you inside. और यही जो वाचा ये जो परमेश्वर का कलाम है वो आपको अंदर से साफ These करेगा। scriptures will build you in Christian faith. और यही कलाम है जो आपको अपने मसीह में और मजबूत बनाएगा। We are going again back to Numbers. हम फिर से गिनती में जाएंगे। When the fiery serpent came and bite the people and many are died. हम देखते हैं कि वो विषनाशक सांप ने जब आके काटा और काफी लोग मर गए। Verse number 8 says, 21:8 में हम जब पढ़ते हैं, आठ में, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसे हुए उसको देख ले वह जीवित बचेंगे। हम देखते हैं कि सांप ने डसा हुआ है, विष ऑलरेडी चढ़ा है, जिसको ज्यादा चढ़ गया वो ऑलरेडी मर गया है। और वर्स नंबर 7 में लोग चिल्ला रहा है, आई थिंक 7 क्राइंग। अभी मूसा वो लोगों के लिए दुआ कर रहा है, खुदा से प्रार्थना कर रहा है। खुदा बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन है, यू मेक वन, make a fiery serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is beaten when he looks at it shall live. और हम देखते हैं 8 में लिखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने वो लोग जब रो रहे थे तो मूसा प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर जवाब देता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ है उसे देख ले, वे जीवित बचेंगे। जिसको विष चढ़ा हुआ है, मींस जो सांप से काटा हुआ है, वो इंसान अगर वो तांबा का सांप को देखेगा तब क्या होगा, वो बचेगा करके उधर लिखा है। और वर्स नंबर 9 में लिखा है, जिसने उसको देखा वो लोग बच गए करके लिखा है। It is written, if serpent had been beaten anyone, when he looked at the brown serpent, they lived. और हम देखते हैं कि जो कोई उस सांप की प्रतिमा को देख रहे थे वो सारे बच गए। So today, in the place of this brown serpent, और हम देखते हैं आज की जो हम युग में जो जी रहे हैं, वो जो तांबे का जो सांप है, instead of this, God has given the finished work of Jesus Christ on the cross. पर आज हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह ने अपना किए हुए काम के ऊपर हम अपनी आंखें और नजर जब हम लगाते हैं, So when we meditate on that cross, what Jesus has done for me, और जब हम ये काल में यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो बातों को जब हम याद करते हैं, when we say, Lord, I thank you, you took all my sin upon you. और जब हम घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, Lord, I thank you, I've taken all curses upon you. और मेरे सारे श्राप को आपने अपने ऊपर ले लिया, I thank you, I've taken all my sorrows, all my diseases, all my failures upon you. प्रभु यीशु आपने मेरे सारे श्रापों को और मेरे सारे बीमारियों को, मेरे सारे कमजोरियों को आपने उस क्रूस पर ले लिया। I thank you, I've taken all my poverty, disappointment, discouragement upon you. और मेरे सारे गरीबी को, निराशा को और सारे शर्मिंदगी को आपने निकाला है। And you have given me your righteousness. और आपने मुझे अपना रास्तबाज ठहराया You है। have given me your glory. और आपने मुझे आपके जलाल से You भरा have है। made me light of this world. और मुझे आपने इस जगत की
ज्योति बना दिया। Thank you, Lord, I'm a new creation in you. और मैं शुक्र करता हूँ कि प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि हूँ मैं। When you see this verse in your mind, और जब ये कलाम को अपने दिलो दिमाग में आप देखते हो, not your thoughts, ये आपकी सोच नहीं है, not your carnal thoughts. ये आप अपने इच्छा से जो सोचते हो वो बात When नहीं। you see the thoughts of God, what is written in the word of God, और जब आप उसकी सोच देखते हो कि उसका कलाम क्या कहता है, and thank the Lord और हमेशा शुक्र करोगे and praise Him, और उसकी तारीफ करोगे, you will experience a transformation in your life. तभी आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी बदलावट को देखोगे। But most important, never hide the sin. पर एक जरूरी बात है, कभी भी अपने पाप को, गुनाह को छुपाना नहीं। As you are looking unto that cross, the finished work of Jesus Christ, the Spirit of the Lord will convince you. If there is any sin, repent and throw it out. The Lord will transform your life. और जब अपनी आंखें उस क्रूस पर लगाओगी कि प्रभु यीशु ने जो काम को किया है उस क्रूस पर, तो परमेश्वर को और कबूल करोगे जो भी आपके अंदर कमी कमजोरियां है, तो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो सारी निकल जाएगी और आपकी जिंदगी में एक बड़ी बदलावट आएगी। We saw in Numbers those who are bitten by the serpent, और हमने गिनती में पढ़ा कि जो भी सांप से काटे गए थे, and many are died. और हम देखते हैं कि जिनको उसने डसा वो सारे काफी लोग मर गए। But those who looked unto that brown serpent, और जो कोई पर उसकी प्रतिमा, जो सांप की प्रतिमा को देखने लगे, they are delivered from the poison. और हम देखते हैं कि वो विष से वो लोग बच गए। So we'll read from 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. If you want to deliver from the poison of sin from your life, और उसी तरह से जो पाप का जो विष है उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, and once that the poison of sin will leave goes, you can live for God. अगर जब वो जो पाप का जो विष है वो निकल जाएगा, तो हम हमेशा के लिए जिंदगी यीशु के लिए जी सकते हैं। फिर आप पूछेगा क्या करना पड़ेगा? वर्स नंबर 15 says, and he died for all. यीशु मसीह हम सब लोगों के लिए मरा, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। I request everyone read this scripture. This is the foundation of Christian faith. और मैं चाहता हूं कि हर कोई इस कलाम को पढ़े, क्योंकि ये एक मसीह जिंदगी में एक न्यू है। अगर मैं मसीह के लिए नहीं जी रहा हूं, I am not a Christian. अगर मैं मसीह के लिए नहीं जी रहा हूं तो मैं मसीह नहीं हूं। I am deceiving myself. और मैं अपने आप को धोखा देता हूं। I can believe I am righteous, I am washed by the blood of Jesus, my name is written in the book of life. अभी Jesus आएगा, मैं जाएगा, but मैं Jesus के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं मेरे लिए जी रहा हूं। Jesus आएगा भी, मैं नहीं जाएगा। So it is very important, those who call themselves Christian, they must live not for them, they must live for Jesus. Means they should live in holiness. और जो कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ, तो उसने मसीह के लिए जीना है और अपने खुद के लिए नहीं, और पवित्रता और पाक जिंदगी जीना है। So when we desire to live for Jesus, और जब हम ख्वाहिश करते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए जिए, by seeing those scriptures what Christ has done for us, और हम जो यीशु मसीह ने जो किए हुए कामों के ऊपर विश्वास करके, the verse number 17 says, therefore if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation, the old has passed away, behold new has come. और जैसे हम 2 कोरिन्थियों 5:17 में पढ़ते हैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, परंतु
पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। So you have to tell yourself, Father, I thank you. You have put your word in my mind. तो आपने परमेश्वर से कहना है कि प्रभु यीशु धन्यवाद देता है कि आपके कलाम को आपने मेरे मनों में, मेरे दिमाग में रखा है। You have written your word in my heart. और आपने अपने कलाम को मेरे दिल में लिखा है। According to Ezekiel chapter 36:26, you have given me the new heart. और एजेकियल 33 में 36:26 में likhta hai कि उसके वचन के अनुसार उसने मुझे एक नया दिल दिया You है have given me the new spirit. और तूने मुझे एक नई आत्मा दी है। According to 2 Timothy 1:7, you have given me the spirit of power. You have given me the spirit of love. और आपने मुझे प्रेम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। According to hallelujah 2 Corinthians 5:17, hallelujah, I am in all things are gone. और जैसे 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखता है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें निकल गई है। As you rejoice in the finished work of Christ, और जैसे आप आनंदित और मगन हो जाते हैं कि प्रभु मसीह यीशु के उस किए हुए कामों के ऊपर, the transformation will come in your life. तभी आपकी जिंदगी में आप बदलावट को महसूस करोगे। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So shall we go for praying now? अब हम आगे प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। Father, we thank you for your word, oh God. खुदावन हम शुक्र करते हैं आपके कलाम के लिए। Today you taught us how to experience your power transformation in our life. और खुदावन जैसे आपने सिखाया कि किस तरह से हमारे जिंदगी में हम बदलावट को देख सकते हैं। We saw in your word when people are beaten by the fiery serpent, और हमने देखा जो लोग जो विषनाशक सांप से मारे गए थे, when they saw the bronze serpent, और जब उन्होंने तांबे के उस सांप को जब देखा, it is written they lived, they not died. और वो हमने देखा कि वो जीवित रहे और वो मरे नहीं। Today we look unto Jesus, hallelujah, who has taken all our sin, who has taken all our curses, who has taken all our sickness and given us healing, righteousness and forgiveness. तो आज हमारी इस दशा में हम उस क्रूस के ऊपर हमारी आंखें लगाती है, जहां से हमें छुटकारा मिलता है, हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है और सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। No longer I live for myself, I live for Jesus. और इसके बाद से मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, पर प्रभु यीशु के लिए जीता हूँ। Lord, remove every darkness from my life, oh और God. खुदावन मेरे जिंदगी में जितना अंधेरा है वो सारा निकल जाए। Let your brightness, let your light come to my life. और मेरे जिंदगी में आपका उजाला और बढ़ते I जाए। pray for all those who are watching me, those who are hearing me, those who are agreeing with your word. I pray for their breakthrough in the name of और Jesus. जो कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू को रिलीज करता हूँ। I bless them in Jesus' name. मैं आप उनको सबको आशीषित करता I हूँ। destroy the works of devil over your life in the name of और Jesus. शैतान के सारे हथियारों को आपकी जिंदगी से मैं कैंसिल कर देता हूँ। Spirit of the Lord says, come to Jesus. He will give you peace. He will give you victory. He will help you to live a holy life. और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपको एक फतह की जिंदगी और आपको निराशा से निकाल कर एक खुशी की जिंदगी देता The है। Lord says, no need you should be in the bondage. और प्रभु परमेश्वर कहता है कि आप इसके बाद में कोई जुए में जुड़ने की जरूरत नहीं You है। are not a child of devil. You are a child of God. आप शैतान के बच्चे नहीं हो, परमेश्वर के बच्चे हो। The Lord has set you free through His blood. और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है उसके लहू के जरिए। So completely desire God इसीलिए अपने दिल से परमेश्वर की ख्वाहिश करें and completely surrender your will to God. और अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर की इच्छा को Call on to His holy नame और उसके पवित्र नाम को पुकारे and He will work wonders in your life. और वही आपके जिंदगी में अद्भुत कार्यों को He is a करेगा। living God. और वो जिंदा परमेश्वर He is है। a living God. वो जिंदा परमेश्वर He is a है living God. और वो जिंदा परमेश्वर है। In Jesus' name.